Hey guys, welcome to the lecture of mathematical logic. In simple terms, this lecture will help you all to crack your JEE MCQs and moreover all the competitive exam wherein mathematical logic chapter is there in the syllabus. I will quickly recap everything, whatever is there, all the concept I will revise, whatever is there in your mathematical logic. The very first thing what we need to understand is statement. So what is logical statement in maths? It is nothing but all universally accepted fact, that is nothing but Delhi capital of India. So it is true. Maths के formulas, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, where theta is real values and all equation with values. ये सारे के सारे statements या तो हमें true या false value देंगे. अब अगर मैं बोलता हूँ not a statement, command, request, order, open statement, interrogative sentence, affirmative sentence, in simple terms, exclamatory sentence, what is your name? It will not be considered as statement because we cannot give the value it's true or false. जिसका आप आंसर बाकायदा ट्रू या फॉल्स दे सकते हो उसे बोलते हैं स्टेटमेंट, अदरवाइज उसे स्टेटमेंट नहीं कहा जाता मैथ्स के अंदर. जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स आता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेटमेंट, जिसको हम अब जैसे मैं बोलता हूँ मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, so it will be true for somebody, false for somebody, but this is not a universal fact कि everybody will like maths. So in simple terms that will be considered as not a statement. In JEE you will find statement is also known as preposition. आपको जहाँ भी word preposition आएगा इसका मतलब वो statement ही होगा. Now what next? We need to understand connectors. आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उनको आपको ज्वाइन करना है यूजिंग कनेक्टर्स. अपने पास चार कनेक्टर्स है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. द सिंबल फॉर कंजंक्शन इज टोपी, जिसको एंड बोलेंगे. डिसजंक्शन वी विच इज नथिंग बट और. एरो इज इम्प्लीकेशन, जिसको हम इम्प्लाइज कहेंगे. और डबल इम्प्लीकेशन बोथ साइड एरो. I hope this is clear. Now, what are the rules of conjunction, or what are the words which we are going to use to connect two statements? Conjunction, we can use word and, but, while, yet, although, in spite. So these are the words which we can use to join two statements, and that statement will be considered as conjunction. Disjunction में हम use कर सकते और या either or. इम्प्लीकेशन में इफ और देन, इम्प्लाइज यानी इफ थोड़ी देर के बाद देन, इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास. सो डबल इम्प्लीकेशन इज इफ एंड ओनली इफ या आई डबल एफ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. आपको एक और बात बताता हूँ, आपको जितने भी थियरम्स पता है आप लोगों ने बचपन में पढ़े, जैसे कि बचपन में तो क्या 9th और 10th में पढ़ा है, जहाँ भी वर्ड इफ एंड ओनली इफ आता है ना उसका हम लोग को कंपल्सरी कन्वर्स भी देना चाहिए. यानी ए से लेकर जेड जा रहा है तो हम लोग को ये भी बताना है कि Z से लेकर A भी वो करेक्ट है. तो इफ एंड ओनली इफ यानी डबल इम्प्लीकेशन. ऑलराइट, सो व्हाट आर द रूल्स? यू ऑल नो when we have two statements, first statement will be considered as P and second statement will be considered as Q. Though true, though false, true false, true false. What are the rules of conjunction? If both true, then true. So now see, दोनों true है तो answer is true. Rest all are false. So both true, दोनों true तो true वरना false. एक भी true चाल से, डिसजंक्शन का रूल क्या है, वो एक भी true को ले लेगा. देखो true आया, true आया, बट इसमें false नहीं आया, सॉरी true नहीं आया तो false होगा. बिंगो. नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन सेज तेरा फ्रेंड फालतू, TFF, यानी आपको ऑर्डर आना चाहिए. देखो T के बाद F नहीं है तो ये T होगा, T के बाद F है तो इसका आंसर F होगा. F के बाद T है, ये भी TF है बट उल्टा है ना तो इसमें T होगा. यानी ऑर्डर शुड बी TF एंड देन ओनली F, अदरवाइज नो. TF देन ओनली F, अदरवाइज नो. एंड डबल इम्प्लीकेशन सेज सेम सेम ट्रू, जो तेरा है वो मेरा है, सेम सेम ट्रू. नहीं नहीं, सेम सेम ट्रू. फॉल्स फॉल्स, ट्रू. सेम सेम ट्रू. सो कंजंक्शन इज व्हाट, दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स. डिसजंक्शन इज व्हाट, एक भी ट्रू चाल से, तेरा फ्रेंड फालतू and same is true. Implication is also known as conditional statement and double implication is also known as biconditional statement. I hope this is clear till now. Now we have negation. Negation is what?
no, not, never. No, not, never. Symbol will be this. एक वेव छोटा सा जो ट्रू को बनाएगा फॉल्स और फॉल्स को बनाएगा ट्रू. अब आपको पता है ये सारी एंट्रीज मिक्स है. अगर ये सारे वैल्यूज ट्रू आते हैं ना तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं टॉटोलॉजिकल स्टेटमेंट. सारे आंसर्स फॉल्स होंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलासी. और अगर मिक्स आए तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी. उसको क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट नोट्स. नीदर नॉर आपको दिखाई देता है. नीदर नॉर. सी, आई नीदर लाइक टेनिस नॉर फुटबॉल. तो मेरे को टेनिस भी पसंद नहीं है और फुटबॉल भी पसंद नहीं है. तो इसका मतलब क्या? एंड. दोनों को नेगेटिव और एंड. इट इज नॉट ट्रू या फिर इसके यहाँ पे फॉल्स आएगा. यानी पूरा का पूरा स्टेटमेंट और उसके बाहर नेगेटिव बैठेगा. उसके बाहर क्या बैठेगा? नेगेटिव. एक और चीज का ध्यान रखना है जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ. इस चीज का ध्यान रखना है आपको. ऑलवेज स्टेटमेंट्स मस्ट बी पॉजिटिव. और अगर उसमें नेगेटिव रहा, इफ नेगेटिव या इफ नेगेशन, देन पुट इन सिंबॉलिक फॉर्म, जिससे तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा. कौन सा फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर. कौन से फॉर्म में डालोगे? सिंबॉलिक फॉर्म में. ऑलवेज स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. इफ नेगेटिव, देन पुट इन सिंबॉलिक फॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट कम्स क्वांटिफायर्स. Quantifiers are nothing but symbol used to check whether the values of a given set satisfies or not. So now, when I have ulta A, it is known as universal quantifier. या फिर ulta E, it is known as existential quantifier. Ulta A का मतलब होता है all and every, each and every value will satisfy the given condition. बट उल्टा ई का मतलब होता है सम और फ्यू वैल्यूज विल सेटिस्फाई गिवन कंडीशन. यूनिवर्सल क्वांटिफायर का दूसरा नाम है सब कुछ. एक्चुअली ये मैंने बोला है सब कुछ, और ये है कुछ कुछ. सारे वैल्यूज सेटिस्फाई हो रहे, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहे, कुछ कुछ वैल्यूज सेटिस्फाई हो रहे. क्वांटिफायर्स कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको थोड़े टाइम के बाद. नाउ कम्स ड्यूअल स्टेटमेंट. व्हाट इज ड्यूअल स्टेटमेंट? इन सिंपल टर्म्स उनके रूल्स क्या है? एंड को बनाएगा और. दिस इज एंड, टोपी. And will become or, and will become or, true will become false, tautology will become contradiction. So tautology is small t and contradiction is small c. I hope this is clear. So these are the rules we follow in dual statements. These are the rules which we follow in dual statement. And will become or will become and. Vijay and Vinay are best friends. तो इसका आंसर क्या होगा? विजय और विनय are best friends. Okay. So these are the things. थोड़ा बहुत कवर किया है मैंने. आगे की चीज देखते हैं हम लोग थोड़े टाइम के बाद. ओके.